So today we are going to discuss a very important topic regarding human resource management, which is about how the organizations are making a decisions about the pay, about the compensation in the organization. So these are the learning objectives. First of all, what are the main decision areas and concepts in the employee compensation management? What are the different kind of administrative tool used to manage employee compensation? What is the importance of the comparative labor market? And product market, which basically influences the compensation decision. What is the significance of the process issues such as communication in the compensation management? Then we are going to discuss about the new development in the design of the pay structure. I'm going to skip how that the United States stand on the pay issues 11.6, 11.7, and 11.8. So we are going to discuss till the employment payment structures in this particular chapter. So first of all, we are going to discuss from the employer point of view. पे का अगर हम देखें कि employer point of view से what is the importance of the pay for the employer? It's basically very important, powerful tool for the employer to achieve the organization strategic objective. Again, pay is also influencing the employee attitude and the behavior in the organization. It influences that what things are important in the organization, how you are going to influence the behavior and attitudes of the employees in the organization. It basically acts as a motivational tool for aligning employee interest with the broader organizational goal as well. So that's why it's important to understand that how we are going to determine the different kind of a pay structure in the organization. Second, employee compensation is typically organizational cost accounting. It's basically labor cost comes under the variable cost for the organization as well. तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप कितना रेवेन्यू को व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू विच इज गोइंग टूवर्ड्स द लेबर कॉस्ट और द एम्प्लॉय कॉस्ट की तरफ जा रही है. तो इट्स बेसिकली सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट, एम्प्लॉय की कॉम्पनसेशन, एम्प्लॉय की सैलरीज, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स, एम्प्लॉय के इंसेंटिव, ये सारे के सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट करते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप pay structure which is fair and which motivates their employees to work in their organization as well. So it's a basically you can consider it's a basically critical part of the business strategy of the organization, how they can basically keep the control over the labor cost and how can they basically execute the business strategy which help them to increase their revenue and the profit. ये भी एक बात आपको ध्यान में रखने की है, अगर लेबर कॉस्ट बहुत रिड्यूस कर देंगे तो आपको ऐसी लेबर ना मिले जो कि इफेक्टिव ना हो, जो कि स्किलफुल ना हो. इस केस के अंदर भी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी की सर्विसेज जो हैं वो इफेक्ट हो सकती हैं. So that's why it's important for the employer to have a view that how they are going to determine the pay structure in the organization and how these pay structures are influencing the employee's behavior and attitudes in the organization. Okay. So from the employer point of view, we are going to decide about different kind of the policies regarding the wages, salaries, and other earnings affecting the overall income and the standard of the living. देखिए, both level of the pays are important in that regard that help the employees to keep that standard of the living in that society as well. आप जिस कॉन्टेक्स्ट में हैं, जिस सोसाइटी के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रिस्पेक्टिवली ऑपरेट कर सकें. अच्छा, फिर pay is also considered as a sign of status and sign of success, and employees attach great importance to the pay decision when they evaluate their relationship with the organization. Therefore, pay decision must be carefully managed and communicated. तो क्योंकि ये एम्प्लॉय के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसका मॉनेटरी एलिमेंट, उसका फाइनेंशियल एलिमेंट, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द जॉब इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द employee. So it is basically it's very important for the employer to be considered effective system of development of the pay structure in the organization. Okay, now we can talk about certain kind of a
terminology regarding the salary levels. Salary level can be broken into two areas. One is about the pay structure, another is about the individual pay. Both pay level and pay structures are characteristics of the organization and reflect decision about job rather than about the employees. So that you are going to determine the salary level according to the jobs in the organization. अगर आपकी जो jobs हैं organization के अंदर multiple jobs हैं, for example, either the marketing manager, finance manager, and their marketing officer, finance officer, then what are the different kind of the pay levels and what is the job structure in the organization? For each structure, for example, the starting is marketing officer, then assistant manager marketing, then my manager marketing, then divisional manager marketing. This is what we call the job structure. Then what is the basically pay level for each job structure? So pay structure, the relative pay of the different job and how much they are paid. These are the pay levels. Then it's about the job structure. Job structure refer to the relative pay of the jobs in the organization. Pay level is the average pay, which include wages, salaries, and bonuses of the jobs in the organization. For example, if you started your job as an assistant manager marketing, what is there going to be the pay? What are going to be the benefits? What are going to be the bonuses? These all includes the part of the assistant manager job, then manager, then divisional manager. So it's important to have this kind of a job structure in the organization. Then you are going to determine that what is the relative pay for each job structure in the organization as well. So these are the one need to understand what are the pay structure, what are the different pay levels, what is the job structure, and what is the individual pay. Individual pay can vary within the job structure as well. For that depends upon the seniority of the person as well. That depends upon how long that person is working with that organization. There could be some multiple factors due to which there could be differences within the same pay level of different individuals in the organization as well. Now we are going to discuss about equity theory and fairness. There is a tendency of the employees to evaluate their input and output with the other people input and the output. That what pay I am getting in the organization and what the other person is getting in the organization if that person is working at the same level. So sometimes the people are compare their salary with the salaries of the other person in the same organization. Sometimes they compare their pay with the salaries of the people working outside of their organization. So that this is kind of a comparison. And equity theory and the fairness basically see that if this comparison, the ratios of the input and the perceived outcome are relatively equal, then the people experience less dissatisfaction in the organization, and they do not perceive themselves that they have been less paid in the organization. देखिए जैसा मैं स्टूडेंट के हवाले से कहूँ, अगर आप भी एक एफर्ट करते हैं अपने एग्जामिनेशन के अंदर और आपके दोस्त भी करते हैं और सेम एफर्ट आपको लगता है हमने किया, और अगर आपके ग्रेड के अंदर फर्क आ जाए, तो उस केस में अगर आपको ये फीलिंग आए कि मेरे साथ कोई अनफेयरनेस हुई, ये इक्विटी थ्योरी उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही है. तो दैट मीन्स पीपल evaluate द फेयरनेस ऑफ देयर सिचुएशन बाय कंपेयरिंग देम विद दोज ऑफ अदर पीपल. पीपल कंपेयर देयर ओन रेशो ऑफ परसीव्ड आउटकम, कि मुझे आउटकम क्या मिल रहा है, पे क्या है, मेरी बेनिफिट्स क्या है, मेरे वर्किंग कंडीशन क्या है, टू परसीव्ड इनपुट्स क्या है उसके, एफर्ट है, एबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, टू द रेशो ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द अदर. अच्छा, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको हम कहते हैं कि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं. अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजर हैं, एक और उसी ऑर्गेनाइजेशन के एक और ब्रांच में एक और एचआर मैनेजर है, एंड यू आर गेटिंग लेट्स से 2 लाख रुपीज, अदर पर्सन गेटिंग 3 लाख रुपीज, तो फिर आपके ध्यान में आता है कि वाई द अदर पर्सन इज गेटिंग हायर सैलरी देन मी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये एक इक्विटी डिस्ट्रेस क्रिएट करता है, एक स्ट्रेस का सबब बनता है. इस कंपैरिजन के नतीजे के अंदर, एक कंपेयर करने के नतीजे में एक इंसान को अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता है. अब हम इसको बहरहाल वी आर गोइंग टू टॉक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉम्पनसेशन. फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी थ्योरी एंड द फेयरनेस. द person P compare their own ratio of perceived outcome, pay, benefit, and working condition to perceived inputs, affordability, and experience to the ratio of the comparison other.
अच्छा, अगर इक्विटी बराबर हो तो आपको नहीं लगता कि मतलब जितना मैं काम कर रहा हूँ उतनी मुझे कॉम्पनसेशन मिल रही है और जितना दूसरा भी काम कर रहा है उसको भी उतनी कॉम्पनसेशन मिल रही है, तो उस केस के अंदर आपको इनइक्विटी महसूस नहीं होती। बट इफ देर इज अ परसीव्ड इनइक्विटी, अगर ये रेशो जो है वो लेस है या ग्रेटर है, लेस इस सेंस में कि अगर आपको लगे कि मेरी एफर्ट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मुझे वो आउटपुट नहीं मिल रहे, अदर पर्सन की एफर्ट जो है वो बहुत कम है, उसको बहुत हाई आउटपुट मिल रहे हैं, तो आपको आप लेस किताब समझते हैं, अंडर रिवॉर्डेड हैं आप। दैट इज व्हाट वी कॉल द अंडर रिवॉर्डेड इन इक्विटी। अदर केस वुड बी द ओवर रिवॉर्डेड इक्विटी, इन इक्विटी के आपको लगता है कि आप तो बहुत थोड़ा सा काम करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, और अदर पर्सन तो बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, फिर भी उसको रिवॉर्ड बहुत कम मिलता है। तो देर कुड बी द डिफरेंट काइंड ऑफ a situation. One could be if you are under rewarded, people have a different options. People can reduce their input कि हम उतना ही काम करें जितने हमें पैसे मिल रहे हैं, increasing one's outcome, थेफ्ट करें, करप्शन करें, ब्राइबरी लें, ताकि आपको कम जो पैसे मिल रहे हैं उसको लोग रैशनलाइज करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, अनएथिकल मीन्स के अंदर आ जाते हैं, और लीविंग द सिचुएशन, छोड़ दें उस जॉब को, किसी और जगह के ऊपर चले जाएं। और जो लोग ओवर रिवॉर्डेड आपको लगता है, जिनको आपको लगता है जिनको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहे हैं, उनके साथ कॉपरेट ना करें। अगर आपका मैनेजर आपको लगता है जिसकी बहुत ज़्यादा पे है और जो बड़ा कम काम कर रहा है, some people tend to not to cooperate with them। और तो ये हो सकते हैं काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर हो सकते हैं, तो पीपल रिस्टोर द इनइक्विटी। हाँ, अगर ओवर रिवॉर्डेड हो जाए तो सम पीपल ट्राई टू रैशनलाइज, या तो अपना इनपुट बढ़ा देते हैं, या फिर वो ये करते हैं कि दे बेसिकली टेंड टू रैशनलाइज कि हमें जो ज़्यादा मिल रहा है उसे कोई ना कोई पॉसिबल रीजंस भी हैं। तो ये कुछ इक्विटी थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है फॉर द कॉम्पनसेशन। देखिए, अगर इन इक्विटी की फीलिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर आ सकते हैं। अगर लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे साथ जो फेयर कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा, हमें फेयर रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, इसके बेस पे लोग हो सकता है काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर, इतना थेफ्ट है, करप्शन है, ब्राइबरी है, नॉन कॉपरेशन है, बहुत सारे ऐसे काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर हैं, नेग्लिजेंस है, जिसके अंदर वो एंगेज हो सकते हैं। तो इसलिए आपका रिवॉर्ड सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इट हैज़ टू बी इक्विटेबल, इट हैज़ टू बी फेयर। अच्छा जी, देर आर टू काइंड ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी, दीज आर एक्चुअली, देखें, दिस इक्विटी इज अ परसेप्शन, ये लोगों की परसीव्ड फेयरनेस है, ये कोई एक्चुअल कोई फार्मूला नहीं है कि आपने 2/2 का फार्मूला है। हाउ दे परसीव्ड कि मेरे इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, अदर पर्सन के इनपुट एंड आउटपुट क्या है, एंड द पीपल आर कंपेयरिंग, सोशली कंपेयरिंग विद द अदर पर्सन एज वेल। अब ये किससे वो कंपेयर कर रहे हैं, ये भी एक डिपेंड करता है कि आप कंपेरिजन हो किसके साथ रहा है। अब there could be some external equity and there could be some internal equity as well. External equity pay comparison focus on what the employees in the other organization are paid for doing the same general jobs as well. As such, comparison are likely to influence the decisions of the um, decisions of the applicants or employees' attitude and the behavior of the employees in the organization to whether to stay in that organization or take a job somewhere else. तो ये उस सेंस के अंदर जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। A market pay survey is a primary administrative tool organization use choosing a pay level. What are the market pay surveys? For example, if you are working as an HR manager, so what is the basically average पे फॉर द एचआर मैनेजर इन द मार्केट इन विच यू आर ऑपरेटिंग। पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लाहौर में काम कर रहे हैं, कराची में काम कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, तो उसके हवाले से मार्केट पे सर्वे हुआ हो कि किस लेवल के ऊपर जो है इस जॉब के लिए पे किया जाता है। अनदर इज अबाउट द इंटरनल इक्विटी। पे कंपैरिजन फोकस ऑन व्हाट एम्प्लॉइज are getting within the same organization. Employees make comparison with the lower level jobs at the same level, but perhaps in the different skill set or the product division, and jobs at the higher level as well. Achha, these comparison may influence general attitudes of the employee, their willingness to transfer to the other jobs within the organization, their willingness to pursue and accept promotion to higher level jobs, their inclination to cooperate across jobs as well. Functional areas of product groups and their commitment to the organization. अब ऑर्गेनाइजेशन का जो जॉब स्ट्रक्चर है वो भी इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो किस तरह का कंपैरिजन कर रहे हैं, किस तरह के उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, किन लोगों के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं। अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उनकी अनफेयर की एक फीलिंग जनरेट होती है तो ये भी उनके बिहेवियर और एटीट्यूड को जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। अब इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है टू मेंटेन द इंटरनल इक्विटी ऑफ जॉब एवेल्युएशन, इसके बारे में हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर में।
Okay, what do we mean by job evaluation? Job evaluation is actually determining the worth of that job in the organization. Let's say, what is the worth of the CEO job in the organization? What is the worth of the manager in the organization? What is the worth of a janitor job in the organization? What is the worth of a sanitary staff in the organization? So, job evaluation is the administrative tool through which you are going to maintain the internal equity, and market-based survey is an administrative tool through which you are able to, through which you establish the external equity in the organization. Okay, this is the table 11.2 regarding the pay structure, concepts, and consequences. Pay structure decision area, what is the pay level? These are the two types of employee social comparison of the pay that especially relevant in making pay level and a job structure decision. Administrative tool is the market pay structure. Focus of the employee pay comparison is the external equity. एक्सटर्नल एम्प्लॉय मूवमेंट, अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ द क्वालिटी एम्प्लॉयज, लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय एटीट्यूड। अच्छा, इसका कंपैरिजन का क्या तरीका कार है? मार्केट पे के अंदर आपके पास एक जॉब एक है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेट्स से फॉर इंस्टेंस मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। अब उसका मार्केट पे के सर्वे अगर आप करते हैं तो व्हाट इज द एवरेज पे फॉर दैट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो एक्सटर्नल इक्विटी के अंदर एम्प्लॉय को अगर आप चाहते हैं कि वो यहाँ रुके, तो उसकी अट्रैक्शन के लिए, उसकी रिटेंशन के लिए, क्वालिटी एम्प्लॉयज के लिए आप उस पे स्ट्रक्चर को, अपने पे को मार्केट पे के मुताबिक करते हैं, तो सो द एम्प्लॉय कैन स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। इससे आपकी लेबर कॉस्ट पे भी आपको देखनी पड़ती है कि व्हाट इज द योर ओवरऑल लेबर कॉस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, और आप इससे आप एम्प्लॉय के एटीट्यूड को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप अंडर द मार्केट पे कर रहे हैं, एट द मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं, या अबव द मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं। तो इसके डिफरेंट किस्म के कॉन्सिक्वेंसेज हैं एम्प्लॉय के एटीट्यूड और बिहेवियर के हवाले से। अच्छा, देन इज अबाउट द जॉब स्ट्रक्चर एज वेल। एक तो पे लेवल हो गया। जॉब स्ट्रक्चर से मुराद है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपने जॉब की स्ट्रक्चरिंग किस तरह की हुई है, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स। तो जॉब स्ट्रक्चर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल अवेलेबल है वो है जॉब एवेल्युएशन। और जॉब एवेल्युएशन से आप ये देखते हैं कि लोग जो हैं, अगर इंटरनल एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनको प्रमोशन की जरूरत, वो समझते हैं कि अगर हमने अपनी सैलरी को इंक्रीज करना है तो हमें प्रमोशन के लिए कोशिश करते हैं। देन द पीपल आर गोइंग फॉर ट्रांसफर, जॉब रोटेशन, कॉपरेशन अमंग एम्प्लॉयज़, एंड दैट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय एटीट्यूड एज वेल। तो डिफरेंट किस्म के पे लेवल्स को डिटरमिन करना कि हमने कितना पे देनी है, और हमारा जॉब स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके लिए दो डिफरेंट किस्म के टूल जो हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूटिलाइज करती हैं। ओके, डेवलपिंग अ पे लेवल, मार्केट प्रेशर। देखिए, वन इज द प्रोडक्ट मार्केट कंपटीशन। व्हाट डू वी मीन बाय द प्रोडक्ट मार्केट? देखें, फॉर एग्जांपल इफ वन कंपनी इज सेलिंग अ मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन की जो प्रोडक्ट मार्केट है उसको हम उस प्रोडक्ट मार्केट के हवाले से कह रहे हैं। एंड व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए लेबर कॉस्ट फॉर दैट कंपनी विच इज ऑपरेटिंग इन दैट मोबाइल इंडस्ट्री। मतलब अगर टोटल उनकी लेबर कॉस्ट कितनी है, फॉर एग्जांपल कंपनी ए की टोटल लेबर कॉस्ट 30% है और कंपनी बी की टोटल लेबर कॉस्ट 20% है, तो इस केस में जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होगी कंपनी ए की वो बढ़ जाएगी क्योंकि उनकी लेबर कॉस्ट हाई है। इस तरह प्रोडक्ट कंपनी बी की जो प्राइस है वो कम हो सकती है, उनका मार्जिन कम हो सकता है क्योंकि उनकी जो लेबर कॉस्ट है वो कम है। तो बहरहाल ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना पड़ता है कि इन ऑर्डर टू compete in the product market, they must be able to sell their goods and service at a quantity and price that will bring a sufficient return on their investment। अगर बहुत ज़्यादा हाई लेबर कॉस्ट हो जाएगी तो उस केस के अंदर भी कंपनी को प्रॉफिट अर्न करना जो होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। और प्राइस जो है इस केस के अंदर, प्रोडक्ट मार्केट के प्रेशर के अंदर जो होता है, प्राइस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। तो आपकी लेबर कॉस्ट को, इसलिए अकॉर्डिंग टू दैट आपको लेबर कॉस्ट जो है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, लेबर कॉस्ट इंक्लूड द डायरेक्ट पेमेंट्स एंड द इनडायरेक्ट पेमेंट एज वेल। डायरेक्ट पेमेंट तो आपकी फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन है, इनडायरेक्ट पेमेंट्स आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, ग्रेजुइटीज़ हैं, मेडिकल बेनिफिट्स हैं। ये सारे बेनिफिट्स आपके इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, इनडायरेक्ट पे के अंदर आते हैं। तो आप जब लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्ट पेमेंट्स और इनडायरेक्ट पेमेंट दोनों को ही आप कंसिडर करते हैं। Upper bound is more constructive where labor costs are a large share of total cost and when demand for the product is affected by changes in price। लेकिन there is a upper bound and a lower bound for the market, for the compensation range। अपर बाउंड के ऊपर प्रेशर उस वक्त तब ज़्यादा आ जाएगा जब आपकी टोटल कॉस्ट जो होगी बहुत हाई होगी। अगर टोटल कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी तो ओवरऑल प्राइस भी बढ़ जाएगी, उस प्राइस की बढ़ने की वजह से
मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड जो है वो भी डिक्रीज हो सकती है। So unless high labor costs are offset by the higher worker productivity or desirable product feature that allow high product price, it will be difficult to sustain the highly relative cost in a comparative product market. If you are operating in a comparative product market और आपकी लेबर कॉस्ट बहुत हाई है, अगर लेबर कॉस्ट बहुत हाई है तो फिर उसकी क्वालिटी भी प्रोडक्ट की बहुत हाई हो और उसकी डिमांड भी बड़ी हाई हो और ऐसे डिजायरेबल फीचर हो जिसके लिए कस्टमर इज विलिंग टू पे अ हायर प्राइस, तब तो वो हायर लेबर कॉस्ट जो है वो रैशनलाइज हो जाएगी। अदरवाइज अगर ये सब चीज़ें फैक्टर नहीं होंगी तो हायर लेबर कॉस्ट जो होगा आपको उसको रैशनलाइज करना जो होगा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये फैक्टर आपको देखना पड़ता है मार्केट प्रेशर के अंदर। A second important comparative market challenge is the labor market competition, which reflects the number of the workers available to the number of the jobs available. अगर शॉर्टेज हो गई है तब उस केस के अंदर लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। एक है लेबर मार्केट, लेबर मार्केट के अंदर आपके पास उस स्किल सेट के कितनी लेबर जो है वो आपको अवेलेबल है उस मार्केट के अंदर। अगर सरप्लस है तो लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, उनके पे लेवल कम हो सकते हैं। और अगर शॉर्टेज हो गई है तो फिर लेबर कॉस्ट जो है वो हाई हो सकती है। अम, तो बहरहाल ये लेबर शॉर्टेज एंड लेबर सरप्लस की जो कि प्रेशर नहीं, जरूरी नहीं कि एक ही प्रोडक्ट मार्केट कंपटीशन के अंदर आ रहे हो, ये अदर प्रोडक्ट मार्केट कंपटीशन के अंदर भी आ सकते हैं। आपके डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं है लेकिन आपके पास इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है जिसके अंदर आपको एक यूनिक स्किल सेट के लोग चाहिए, उस केस के अंदर भी लेबर कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और दिस प्लेसेस अ लोअर बाउंड ऑन पे लेवल्स, मिनिमम पे हम कितनी देंगे उस लेबर को, दैट डिपेंडिंग अपॉन द लेबर सप्लाई इन दैट कॉन्टेक्स्ट एज वेल। आपकी लेबर जो है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस लेवल पे आपको लेबर जो है अवेलेबल है। अगर तो लेबर जो है काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है तो लोअर बाउंड जो है वो नीचे की तरफ जा सकते हैं पे रेंज के। और अगर आपके पास शॉर्टेज है तब लोअर बाउंड बाउंड जो है वो थोड़े अप हो सकते हैं। तो भारत, ये एक चीज आपको देखनी पड़ती है। अपर बाउंड आपको मार्केट लेवल से पता चल रहा है कि व्हाट इज द मार्केट क्या पे कर रही है, और लोअर बाउंड उसकी सप्लाई से पता चल रहा है। प्रोडक्ट मार्केट से आपको अपर बाउंड की डिटर्मिनेशन हो रही है और लेबर मार्केट से आपको लोअर बाउंड की जो है वो डिटर्मिनेशन हो रही है। अच्छा देन, because organization compete in the labor market, they should also consider that employee is just not a cost, but it is also a resource in which the organization will invested to get a good valuable returns. Controlling costs directly affect an organization ability to compete in the product market. Organization comparative position can be compromised if costs are kept at the low at the expense of the employee productivity and quality. तो अगर आप लेबर कॉस्ट देखें, प्रोडक्ट मार्केट के वाले से लेबर कॉस्ट को आप रिड्यूस करते हैं ताकि आपकी जो है ओवरऑल परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू जो है वो रिड्यूस हो जाए। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस प्राइस के ऊपर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ना कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आपको ऐसे लेबर ना मिल जाए जिसकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं है। आप उसकी प्राइस को तो लो करते हैं लेकिन साथ ही आप ये भी देखें कि प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज अगर हो गई तो फिर ओवरऑल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि इनएफिशिएंट है, जिसकी प्रोडक्टिविटी कम है, इवन तो उसकी प्राइस भी कम है, वो ओवरऑल टाइम जो स्पेंड करेगा उस प्रोडक्ट को बनाने के हवाले से वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो कि प्रॉफिटेबिलिटी है वो इफेक्ट हो सकती है। So the main motivation for the organization is to attract, retain, and motivate a high quality workforce. So pay policies are and the programs are one of the most important human resource tool for encouraging desired employee behavior and discouraging the undesired behavior. तो आप पे के डिसीजन से आप ये डिटरमिन कर सकते हैं किस एम्प्लॉय बिहेवियर को आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं और किन एटीट्यूड को वहाँ डेवलप करना चाह रहे हैं। And then deciding what to pay, there are different how you are going to determine the pay levels in the organization. Although organizations face important external labor and the product market pressure in setting high pay levels, a range of discretion remains. With them, how large the range is depend on the particular comparative environment the organization face. Where the range is broad, an important strategic decision is whether to pay above or below the market average. देखिए, मार्केट सर्वे से आपको पता चल जाता है कि एवरेज पे क्या है। फिर इंटरनल वैल्यूएशन से आपको मुख्तलिफ पे
लेवल्स भी आप डिटरमिन कर लेते हैं, फिर भी आप एक पे रेंज डेवलप कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन है, एचआर मैनेजर के लिए पे रेंज कैलकुलेट कर लें रादर देन हैविंग अ फिक्स पे। आप उसे कहते हैं लेट्स से वी आर पेइंग अ एचआर मैनेजर विद इन द रेंज फ्रॉम द रेंज ऑफ फ्रॉम 150,000 to 200,000. And efficiency wage theory states that the wage influence worker productivity. Employees paid more than they would receive elsewhere will put forth effort to retain good jobs. तो अगर आप उनको एवरेज पे हायर पे कर रहे हैं तो समटाइम इट बेसिकली मोटिवेट द एम्प्लॉय टू स्टे इन दैट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. तो व्हेन डू द बेनिफिट्स ऑफ द हायर पे आउटवे द हायर कॉस्ट? One circumstance is when organizations have technologies or structure that depend on highly skilled employees. Another circumstances in which higher pay may be warranted is when an organization has difficulty observing and monitoring its employee performance. It may therefore wish to provide an above market pay related to ensure the incentive to put forth maximum effort. One could be कि आपको एक हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए तो इसलिए आप मार्केट से अबव पे कर रहे हैं। दूसरा, आप अगर आप उनकी सारी चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर सकते तो भी आप उनको हाईली पे कर रहे हैं ताकि वो लोग जो हैं वो डिलीवर करें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस को हवाले से। तो एफिशिएंसी वेज थ्योरी इज बेसिकली emphasizing on these two things. Then market pay service. अच्छा, market survey pay survey में there is the one concept which we call the benchmarking. And benchmarking is the procedure in which the organization compare its own practices against those of competition. So in case of the compensation management, benchmarking against product market and the labor market comparator is typically accomplished through the use of one or more pay surveys. अब पे सर्वेज आप करते हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि क्या गोइंग रेट है कंपीटिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जॉब कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर ओवरऑल पे स्ट्रक्चर्स क्या हैं मुख्तलिफ प्रोफेसर के, एसोसिएट प्रोफेसर के। अगर आप लेट से आप टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के अंदर काम करें तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में देख सकते हैं। टेक्सटाइल कंपनी में काम करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर देख सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द पेज पेज फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब एज वेल. What the pay survey require answer to? Which employees should be included in the survey? किन employees को हमने include करना है? Which jobs are included in the survey? If multiple surveys are used, how are all rates of pay weighted and combined? So determine return of the investment in employee using revenues, employees, revenues, labor cost ratios. अच्छा, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जॉब्स को इंक्लूड करना है, कौन से एम्प्लॉयर्स को इंक्लूड करना है, कौन से, अगर हमने मल्टीपल सर्विस कर रहे हैं तो रेट्स ऑफ पे किस तरह हमने वेट करने हैं, किस तरह हमने कंबाइंड करने हैं। फिर मुख्तलिफ किस्म की रेशोज हैं, रेवेन्यूज़ पर एम्प्लॉयज़, रेवेन्यूज़ पर लेबर कॉस्ट कितनी रेशो है रेवेन्यूज़ की। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रेवेन्यूज़ के हवाले से उनकी ओवरऑल परसेंटेज क्या है रेवेन्यूज़ के हवाले से। द फर्स्ट रेशो इंक्लूड द स्टाफिंग कॉम्पोनेंट ऑफ द एम्प्लॉय, रेवेन्यू प्लस लेबर कॉस्ट के हवाले से, बट नॉट द एवरेज कॉस्ट पर एम्प्लॉय। द सेकंड रेशो हाउएवर इंक्लूड बोथ। तो बहरहाल दूसरी रेशो जो रेवेन्यू पर लेबर कॉस्ट जो है वो आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हवाले से भी बता रही है, परसेंटेज के हवाले से भी बता रही है, जबकि पहली आपको सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हवाले से बात कर रही है। अच्छा, आज हम बात यहीं तक करते हैं, बेंच मार्किंग तक। आप जब नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेवलपिंग पे लेवल्स, और उन पे लेवल्स को कैसे डिटरमिन किया जाता है, उसके अंदर किस तरह की जॉब्स हैं, कौन सी नॉन की जॉब्स हैं, रिग्रेशन इक्वेशन कैसे रन की जाती है। ये बातें हम आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ओके जी, नाउ आई एम गोइंग टू मार्क योर अटेंडेंस। सेल्फ सपोर्ट क्लास की मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा। और
ओके जी, सेल्फ सपोर्ट क्लास, आई मार्किंग योर अटेंडेंस। आयशा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है। सफाना, सफा प्रेजेंट सर। गासिफ, बस ये नोट एहसन, प्रेजेंट। नबीरा, सागिर, आमिर, अहमद, अलीजा, प्रेजेंट सर। लाइबा, अलिशबा, प्रेजेंट सर। हायदा, प्रेजेंट। लाइबा, आतिफ, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला,